ہیں N148 کے ضمن الیکشن کے میدان کی تو پیپلز پارٹی نے یہ میدان مار لیا ہے۔ غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی 85,863 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے تیمور الطاف 52,354 ووٹ لے سکے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں کا علی قاسم گیلانی کی جیت پر جشن بھنگڑے۔ ٹی ایل پی کے ملک اظہر سندیلہ نے 2,242 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ آزاد خاتون امیدوار ڈاکٹر مبینہ اختر 629 ووٹ حاصل کر سکیں۔ جماعت اسلامی کے عاطف عمران کو 381 ووٹ ملے، جبکہ درست ووٹوں کی تعداد 1,42,158 رہی ہے۔ 1,223 ووٹ بھی مسترد کیے گئے۔ ملتان کے حلقہ N148 میں ضمنی الیکشن کا میدان سجا۔ شدید گرمی اور حبس کے باعث ٹرن آؤٹ 25% تک ہی محدود رہا۔ پولنگ کیمپس پر عملے کو ووٹرز کا انتظار رہا۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار نے فارم 45 پر پہلے دستخط کرانے کا الزام لگایا ہے۔ ملتان کے حلقہ N148 میں یوسف رضا گیلانی کی جانب سے چھوڑی ہوئی نشست پر ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کی جانب سے چیئرمین سینٹ کے بیٹے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف میں مقابلہ رہا۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی اور بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ ضمنی الیکشن میں مجموعی طور پر 8 امیدواروں نے حصہ لیا۔ پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے پر بہت کم تعداد میں لوگوں نے پولنگ سٹیشنز کا رخ کیا، جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کم دیکھنے میں آیا۔ متعدد پولنگ سٹیشنز پر عملے کو ووٹرز کا انتظار کرنا پڑا۔ حلقے کے علاقوں میں موبائل سروس جزوی طور پر معطل رہی۔ علی قاسم گیلانی نے کہا کہ والد کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر الیکشن لڑنا پریشر کا کام ہے۔ ہماری جیت سے منفرد ریکارڈ قائم ہو جائے گا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ اس طرح کا کوئی ریکارڈ ہم بنائیں گے یا بنے گا۔ آج بھی میرے ذہن میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم اپنی شہر کی خدمت کر سکیں۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار بیرسٹر تیمور نے الزام لگایا کہ کئی پولنگ سٹیشنز پر فارم 45 پر پہلے ہی دستخط کرا لیے گئے ہیں۔ اتنی گرمی کے باوجود عوام بھرپور طریقے سے نکلی ہے۔ کچھ واقعات ضرور ہوئے ہیں جو ہماری اطلاع میں آئے ہیں، جن کے مطابق فارم 45 پہلے سائن کرا لیے گئے تھے۔ وہاں پہ ہماری وکلا کی ٹیمز نے جا کے اندر بات کی ہے۔ کچھ جگہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر کیا گیا تھا، وہاں بھی ہماری وکلا کی ٹیم موجود تھی۔ مہر بانو قریشی بولی، گرمی کے باوجود ہمارا ووٹرز باہر نکلا ہے۔ N148 میں ضمنی الیکشن کے لیے مجموعی طور پر پولنگ کا عمل پرامن رہا۔ سیکیورٹی کے بھی بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ خبر آپ کو دیں کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو دھمکی آمیز پیغام موصول ہوا ہے۔ نامعلوم شخص نے علی موسیٰ گیلانی کے حوالے سے دھمکی آمیز پیغام بھیجا۔ پولیس نے تھانہ کینٹ ملتان میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق دھمکی آمیز میسج والے نمبر کی لوکیشن ضلع خانیوال سے ٹریس ہوئی ہے۔ CIA انچارج اور پولیس افسران کی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو اس حوالے سے تفتیش کرے گی۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کو تھانہ مارگلہ منتقل کر دیا گیا۔ تنویر الیاس کو نجی شاپنگ مال پر مبینہ قبضہ اور فائرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کو تھانہ مارگلہ منتقل کر دیا گیا۔ تنویر الیاس کو نجی شاپنگ مال پر مبینہ قبضہ اور فائرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا۔ بشکیک واقعہ ہے، وزیر اعلیٰ KP کا طلبہ کو واپس لانے کے لیے خصوصی پروازیں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خصوصی پروازیں آج سے شروع ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ کرغزستان میں پھنسے پاکستانیوں کو بحفاظت وطن واپس لانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ادھر بشکیک میں پھنسے مزید 355 طلبہ وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ اپنے گھر واپس لوٹنے پر طلبہ جذباتی ہو گئے۔ دیگر پاکستانیوں کے بھی جلد بحفاظت واپسی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
बशकीक में पुरतशद्दुद वाक़यात, मजीद 2 परवाजें 355 पाकिस्तानियों को लेकर वतन वापस पहुँच गयीं। 155 पाकिस्तानी तालिब इल्म लाहौर पहुँचे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तलबा को खुशामदीद कहा। बोले तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जब ये वाक़या जिस रात हुआ अलग सुबह इसका नोटिस लिया और जो हमारे बशकीक में सफ़ीर है उनसे भी राब्ते में रहे, किर्गिस्तान की हुकूमत से भी हमारा राब्ता रहा। तो हम ये समझते हैं कि इस क्राइसिस में हम जितनी भी अपने स्टूडेंट्स की मदद कर सकें वो कम है। उधर बशकीक से लाहौर आने वाले तलबा ने इल्जाम लगाया कि बशकीक में हालात अभी भी खराब हैं। वापसी के तमाम अखराजात उन्होंने खुद बर्दाश्त किए हैं। कंडीशन जो सी है कह रहे हैं अंडर कंट्रोल है, लेकिन अंडर कंट्रोल नहीं है कंडीशन। जो बशकीक के मुख्तलिफ जगह हैं उधर मतलब जो कज्जे हैं वो गाड़ियों में छुप के बैठे हुए हैं। कोई पाकिस्तानी आता तो उनको फंसा के अटैक कर देता है, लेकिन हुकूमत को चाहिए एज सून एज पॉसिबल मंगवाए सबको। वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर तो बहुत फोकस किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो कि टेलर्स के वर्क के लिए या मजीद वर्कों के लिए गए हुए और उनके पास इवन वीज़ा अपने एक्सटेंड करवाने के या एग्जिट वीज़ा लगवाने के भी पैसे मौजूद नहीं है। हम तो अपना टिकट खुद दे के आए हैं जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो चुके थे, $200 to $50 के वीज़ाज एक्सटेंड कराए हैं, एग्जिट वीज़ाज के पेश किए हैं। उधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 180 पाकिस्तानी तलबा और तालिबात बशकीक से वापस लौटे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने तलबा का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान वापस पहुंचने वाले तालिब इल्मों ने हुकूमत से किर्गिस्तान में फंसे हम वतनों की जल्द वापसी का मुतालबा किया। और अब बात करते हैं सिपा सालार की। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू हुई। फरीक़ैन ने अस्करी सतह पर दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से पाक फ़ौज के पेशा वराना महारत की तारीफ़ की गई। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा अहमद नसीम वड़ाइच ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी तफसीली बातचीत करेंगे। फ़रीक़ैन दो तरफ़ा ताल्लुकात की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान आइंदा आला सतह की मुलाकातों की तैयारियों का जायज़ा भी लिया जाएगा। इंसाफ न मिला तो लॉन्ग मार्च करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धमकी दे दी है। मुशीर इत्तलात की बैरिस्टर सैफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिजली भी हम दे रहे हैं और चोरी का इल्ज़ाम भी हम पर लग रहा है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सोतली माँ वाला सलूक कर रहा है। चोरी का इल्ज़ाम भी हम पे, बिजली हम दे रहे हैं, 4 रुपए यूनिट हम दे रहे हैं, 64 रुपए यूनिट ये आगे लोगों को बेच रहे हैं। उसके बावजूद हमें हमारा ना हक दिया जा रहा है, उल्टा हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मरकज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक सुतेली माँ वाला सलूक कर रहा है और सिर्फ आज से नहीं, जब से ये हुकूमत आई है उस दिन से ये मामला चल रहे हैं। इन्होंने कमिट किया था कि वो फाटा में डेवलपमेंट काम और जो वहाँ के अखराजात हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे, हमें देंगे। एक पैसा उस मद में नहीं दिया जा रहा। जो हमारी तरफ इनके बकायाजात हैं जो हमें देने चाहिए वो हमें नहीं दिए जा रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा कोरंगी कॉजवे, जाम सादिक पुल, मलिर एक्सप्रेस वे, कैफे प्याला रोड, शाहराह नूरजहां पर तामीराती कामों का जायजा लिया। कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर वज़ीर आला सिंध बरहम हुए। SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इतवार की सुबह शहर के दौरे पर निकल पड़े। शहर में जारी मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स के तरक्याती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को कोरंगी कॉजवे की तामीर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध ने काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत दी। कोरंगी कॉजवे मंसूबा जुलाई 2023 में शुरू किया गया था, जिसे 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल करते हुए SSP को कोरंगी कॉजवे पर अपना कैंप ऑफिस बनाने की हिदायत कर दी।
वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे के दौरे के दौरान कायदाबाद ब्रिज की पोजीशन का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर पर भी ब्रीफिंग दी गई। खबर आपको दें कि स्पीकर कौमी असम्बली को कायमा कमेटियों की तश्कील का मुकम्मल इख्तियार मिल गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पसंद की कमेटी कारकुन बनने के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं से नाम मांग लिए हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के मुताबिक हर कमेटी 18 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 23 मखसूस नशिस्तें कम होने से नून लीग और पीपल्स पार्टी का कमेटियों में हिस्सा कम कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सेहत के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। आवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात मुयसर होंगी। क्लिनिक ऑन व्हील्स में दांतों की बीमारियों से मुतल्लिक सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। आम शहरी को, खुसूसन ख्वातीन को उनकी दहलीज के ऊपर सहूलतें जो है मुयस्सर होंगी। साउथ पंजाब में वहाँ पे जो मोबाइल क्लिनिक और ये क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं, मैं समझता हूँ कि ये आम इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक खुशगवार तब्दीली लेके आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात हुई। तिजारत, कारोबार और सरमाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा भी लिया गया। तलबा के फैकल्टी प्रोग्रामों को फ़रोग़ देने पर उसूली इत्तेफाक किया गया। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमाकारी के मुफीद मौक़े मौजूद हैं। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। पंजाब और जापान तिजारत, सरमाकारी और बाहमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए इश्तराक कार कर सकते हैं। पंजाब की स्किल नौजवान अफरादी क़ुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकती है। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक के अवामी राब्ते नागुज़ीर हैं। जापानी सफ़ीर ने कहा कि जापान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत के साथ इश्तराक कार के लिए पुरज़्म है। चेयरमैन पाकिस्तानी उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि बग़ैर इजाज़त के हज जायज़ नहीं है। पाकिस्तानी आज़मीन हज के दौरान किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा न बने। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं। कराची से रोड टू मक्का प्रोग्राम से हज़ारों आज़मीन हज मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने बग़ैर तशरीह के हज पर पाबंदी लगाई है। ये बहुत अहम नुक्ता है। आप हज के लिए गए हैं, किसी किस्म के कोई सियासी नारेबाजी, किसी किस्म के वहाँ कोई फ़िरका वाराना गुफ्तगू, उससे गुरेज करें। इस वक्त इस्लामाबाद और कराची से रोड टू मक्का प्रोग्राम के तहत हमारे हज़ारों हाजी इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में लाखों हुज्जाज की सहूलत का सबब बन रहा है। इक़्तिसादी मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान और IMF में बेल आउट पैकेज के हुसूल के लिए मुज़ाकरात हुए। ज़राए के मुताबिक मुआशी टीम और IMF में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज फिर से होंगे। नए कर्ज के हजम पर हतमी बातचीत होगी। IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ का तयन किया जाएगा। FBR, रेवेन्यू, नॉन टैक्स आमदनी के अहदाफ तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात के अख्ताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। IMF का पाकिस्तान को अपने बैरूनी असासे मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मजबूती तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम न किया गया। नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मजबूत करना होगी। करंट अकाउंट में अदम तवाज़ुन का ख़तरा बढ़ रहा है। 2023 में पाकिस्तान में बराह रास्त सरमाकारी 28.8 अरब डॉलर रही। रवा माली साल की दूसरी समाही में करंट अकाउंट मामूली सरप्लस हुआ। दूसरी समाही में करंट अकाउंट में $200 मिलियन का सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर टाउन लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा किया। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की और उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। सहूलियात में बेहतरी पर साइलिन ने इत्मीनान का इजहार किया है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इन एक्शन। मोहसिन नकवी छुट्टी वाले दिन गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस जा पहुंचे और साइलिन को सहूलियात की फराहमी में बेहतरी में इत्मीनान का इजहार किया। एक शहरी ने मोहसिन नकवी को कहा कि आप हमारे मोहसिन हैं, आपकी काविशों से मसला हल हो गया। पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद दीगर शहरियों ने भी वफाकी वज़ीर दाखिला को हंगामी इक़दामात करने पर उनकी तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग शहरी का मसला सुना और डेप्यूटी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस को बरवक्त हल करने की हिदायत दी। उन्होंने दीगर शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे में भी पूछा।